Students, welcome to Don Bosco School online classes for class 7th Social Studies of Unit 1st History. Today we are going to start our new chapter New Kings and Kingdoms. Topics to be covered in this chapter are Introduction, Rise of New Kingdoms, the Gurjar Pratihars, Rajputas, the Pals, the Rajputs. Students, we start our first topic Introduction. In the early medieval period, there were many wars among the regional kingdoms of both North and South India. These wars led to the frequent rise and fall of kingdoms. All these kingdoms had the desire to build an empire and therefore continually fought with each other to gain control over their neighboring territories. स्टूडेंट्स मेडिवल पीरियड के स्टार्टिंग में नॉर्थ और साउथ इंडिया के क्षेत्रीय राज्यों में आपस में कई युद्ध हुए और ये सभी राज्य आपस में अपना एक विशाल साम्राज्य एक ह्यूज एम्पायर इस्टेब्लिश करना चाहते थे। इसलिए आपस में वो कॉन्टिन्यूसली फाइट करते रहते थे, जिससे कि अपने पड़ोसी क्षेत्रों पर वो अधिकार करके अपना राज्य को बढ़ाना चाहते थे। राइज ऑफ न्यू किंगडम्स, नए राज्यों का उद्भव। The three most important kingdoms of this period were the Gurjar Pratihar, the Rashtrakutas and the Pals. जो तीन मुख्य राज्यों का उद्भव हुआ मध्यकाल के स्टार्टिंग में वो थे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटास और पाल्स। अब हम इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिटेल अबाउट दीज किंगडम्स। फर्स्ट, द गुर्जर प्रतिहार। In 725, the Gurjar Pratihar rose to power in the area of Avanti or Rajasthan in Gujarat under Nagbhat I. He ruled from 725 AD to 750 AD. In 738 AD, he defeated the Arab Muslims of Sindh and pushed them back. Bhoj first was the most famous ruler of this dynasty. He ruled from AD 836 to AD 885. His empire stretched from Kashmir to Narmada and from Gujarat to Bengal. He captured Kannauj and made it his capital. He was a devotee of Lord Vishnu and adopted the title of Adivaraha. King Bhoj was succeeded by his son, Mahendrapal I, who ruled from 885 AD to 908 AD. He extended his empire over Magad and North Bengal. The last Pratihar ruler was Rajpala. He was attacked and defeated by Mahmud of Ghazni in 1018. In this way, the Pratihar dynasty came to an end. नए राज्यों के उद्भव में मध्यकाल के मुख्य राज्य थे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। इनमें पहले आते हैं गुर्जर प्रतिहार। 725 एडी में राजस्थान, गुजरात और अवंती के क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार का नागभट्ट फर्स्ट के अंडर में उद्भव हुआ और उन्होंने 725 एडी से 750 एडी तक शासन किया। प्रतिहार डायनेस्टी के सबसे प्रसिद्ध और योग्य शासक हुए भोज फर्स्ट और उन्होंने 836 एडी से 885 तक शासन किया। उनका साम्राज्य कश्मीर से नर्मदा और गुजरात से बंगाल तक फैला हुआ था। उन्होंने कन्नौज पे अपना अधिकार करके उसे अपनी कैपिटल बनाया। वे भगवान विष्णु के भक्त थे और उन्होंने आदिवराह की उपाधि भी ग्रहण की थी। राजा भोज के उनके बेटे महेंद्रपाल फर्स्ट हुए, जिन्होंने आगे उनके शासन को संभाला। उन्होंने 885 एडी से 908 एडी तक शासन किया। उन्होंने अपना राज्य मगध और नॉर्थ बंगाल तक फैलाया। इस वंश के अंतिम शासक हुए राज्यपाल। महमूद ऑफ गजनी ने 1018 में उन पर अटैक किया और उन्हें हरा दिया। इसी तरीके से उनके साथ साथ प्रतिहार डायनेस्टी का भी एंड हो गया। The Gurjar Pratihars rulers was great patrons of art, craft, learning and literature. They built magnificent temples and buildings in Kannauj. प्रतिहार शासकों का कला, साहित्य, ज्ञान उच्च कोटि का था और उन्होंने कन्नौज में कई मंदिर और भवनों का भी निर्माण कराया। नेक्स्ट, द राष्ट्रकूटास। The Rashtrakutas built a huge empire which included large parts of Maharashtra, Andhra Pradesh, and Karnataka. They ruled the Deccan for nearly 2 centuries. The founder of this dynasty was Dandi Durga. Rashtrakutas had their first capital at Lattal Uru in Maharashtra, which later shifted to Maniketa in Karnataka. Rashtrakutas built a huge empire which included large parts of Maharashtra, Andhra Pradesh, and Karnataka. राष्ट्रकूटास ने अपना एक ह्यूज एम्पायर इस्टेब्लिश किया जो कि
महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के लार्ज पार्ट में था। उन्होंने डेक्कन में लगभग 2 सेंचुरीज तक अपना शासन किया। राष्ट्रकूटास डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे दांती दुर्गा, और उन्होंने अपनी पहली कैपिटल लट्टल उरू महाराष्ट्र में बनाई। उसके बाद उन्होंने अपनी कैपिटल को कर्नाटका के मान्यकेता में शिफ्ट कर दिया। दिस डायनेस्टी प्रोड्यूस्ड मैनी फेमस किंग्स। किंग अमोघवर्षा 815 to 877 AD was a reputed author. The Pratihars were defeated by Indra III. The Rashtrakutas were finally overthrown by the Chalukyas. राष्ट्रकूटास डायनेस्टी में कई योग्य शासक हुए, जैसे किंग अमोघवर्षा, जिन्होंने 815 AD से लेकर 877 AD तक शासन किया, और एक ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक भी थे। प्रतिहार वर डिफीटेड बाय इंद्र थर्ड। प्रतिहार्स जो थे इंद्र थर्ड के द्वारा पराजित हुए थे। एंड द राष्ट्रकूटास वर फाइनली ओवरथ्रोन बाय द चालुक्यास, और जो राष्ट्रकूटास थे वो फाइनली चालुक्य के द्वारा पराजित हुए थे। द राष्ट्रकूटास वर वेल नोन फॉर पैट्रोनाइजिंग आर्ट एंड आर्किटेक्चर. Krishna first built the famous Kailash temple in Ellora caves. This is a monolithic temple and is an architectural marvel. The Elephanta caves near Mumbai were also made by the Rashtrakutas. The Rashtrakutas were well known for patronizing art and architecture. Rashtrakutas की भी जो आर्ट था, कला था और आर्किटेक्चर, जो उनकी बिल्डिंग्स थी, आर्किटेक्चर था, वो बहुत ही उच्च कोटि का था। और कृष्णा फर्स्ट, जो कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के शासक हुए, इन्होंने ही एलोरा केव्स में फेमस कैलाश टेम्पल का निर्माण कराया। एंड स्टूडेंट्स, यू नो, ऑल ऑफ यू नो अबाउट द एलिफेंटा केव्स which are located near the Mumbai. These famous caves are also made by this dynasty, Rashtrakutas dynasty. Now, the Pals dynasty. The Pals empire was established by Gopal around 750 CE. His kingdom extended over the states of present-day Bengal, Bihar, parts of Odisha and Nepal. पाल शासन जो था वो गोपाल शासक के द्वारा 750 CE में स्टार्ट किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। उनका राज्य प्रेजेंट टाइम के बंगाल, बिहार और उड़ीसा के पार्ट्स एंड नेपाल तक फैला हुआ था। दे फॉट many wars with the Gurjar Pratihars and Rashtrakutas. The Pal dynasty expanded their political boundaries under Dharampal and his son Devpal. Their empire included Kannauj, Odisha, Bihar, Assam and northern India. उन्होंने कई लड़ाइयाँ गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटास से भी की। पाल डायनेस्टी ने अपना जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज बनाई वो धर्मपाल और उनके बेटे देवपाल के अंडर में इस्टेब्लिश की। उनका शासन कन्नौज, उड़ीसा, बिहार, असम और नॉर्दर्न इंडिया तक फैला हुआ था। अकॉर्डिंग टू द तिब्बतियन क्रॉनिकल्स, द पाल्स वर पैटर्न्स ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, लिटरेचर एंड एजुकेशन. धर्मपाल established the famous Vikramshila Buddhist University. Pal rulers also donated generously to Nalanda University, another famous center of Buddhist learning and education. तिब्बतन क्रॉनिकल्स के अकॉर्डिंग पाल्स जो थे वो बुद्धिस्ट पैटर्न को फॉलो करते थे। उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्होंने जो लर्निंग, लिटरेचर और एजुकेशन था, धर्मपाल ने फेमस विक्रमशिला बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट किया। पाल रूलर्स ने नालंदा यूनिवर्सिटी में के इस्टेब्लिशमेंट में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट, द ट्राइपेराइट स्ट्रगल. The ruler belonging to the Gurjar Pratihars, Pals and Rashtrakutas dynasties often fought for control over Kannauj. Kannauj was then a symbol of sovereignty. It was well situated in the northern plains. Therefore, whosoever captured Kannauj could control the Ganga valley. Since there were 3 parties in this long-drawn conflict, historians describe it as the tripartite struggle. These 3 kingdoms were almost equal in strength. So the victory of one over the other did not last very long. Tripartite struggle. त्रयी, इन 3 मेन किंगडम्स के बीच में लगातार युद्ध होते रहते थे, जो थे गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटास। इन तीनों डायनेस्टीज के बीच में लगातार कन्नौज पर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए युद्ध होते रहते थे। कन्नौज वॉज देन अ सिंबल ऑफ सॉवरेंटी. कन्नौज उस समय एक प्रतीक था, सॉवरेंटी, प्रभुसत्ता प्राप्त करने का एक प्रतीक था, इसलिए हर कोई उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। एंड कन्नौज वॉज वेल सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. देयरफॉर whosoever captured कन्नौज could control the गंगा वैली. उन लोगों का मानना था कि जो भी कन्नौज पे अपना अधिकार प्राप्त करेगा
वो कन्नौज की सिचुएशन जो थी, लोकेशन थी, वो नॉर्दर्न प्लेन्स में थी। तो जो कन्नौज पे अपना अपना अधिकार क्षेत्र प्राप्त करेगा उसका भी गंगा क्षेत्र में भी अपने आप अधिकार हो जाएगा। Since there were these three parties in this long drawn conflict, historians describe it as the tripartite. हिस्टोरियंस इस तीन जो मेन थ्री पार्टीज थी, राष्ट्रकूटाज, प्रतिहार्स और पाल्स, इनमें आपस में तीनों में लेकर के इसको काफ़ी लंबे समय तक मतभेद रहा और लड़ाई होती रही। इसको त्रयी कहा गया और थ्री किंगडम्स वर ऑलमोस्ट इक्वल इन स्ट्रेंथ, सो द विक्ट्री ऑफ वन ओवर द अदर डिड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग। ये तीनों राज्य शक्ति में तीनों ही समान थे, इसीलिए एक किसी की भी एक दूसरे पर अपना ये लोग अधिकार नहीं जीत पाए, कोई किसी एक दूसरे पर अपनी जीत नहीं स्थापित कर पाए, क्योंकि तीनों ही शक्ति और सामर्थ्य में समान तौर पे थे। These kingdoms were so busy in fighting among themselves that they did not realize how weak they had all become. Around the end of the 10th century AD, these powers declined almost simultaneously. Other dynasties came into existence and over their territories. Most of these were Rajputs. These kingdoms were so busy in fighting among themselves. लगातार ये तीनों राज्य आपस में युद्ध करते रहे और युद्ध करते करते इन लोगों को ये इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो लोग अपने आप में खुद ही बहुत कमज़ोर होते चले गए और धीरे धीरे करते 10th सेंचुरी आते आते इन लोगों का अपने आप ही स्वतः इन लोगों का डिक्लिनेशन हो गया और उस समय दूसरे अन्य क्षेत्र, अन्य राज्य जो थे वो एग्जिस्टेंस में आने लगे। नेक्स्ट हम इसके आगे राजपूत्स के बारे में पढ़ेंगे। The Rajputs. The word Rajput comes from the Sanskrit word Rajputra, which means son of a king. Historians have different opinions regarding their origins. Some believes that they were descended of Central Asian tribes settled in India after the Hun invasion. The Rajputs, however, claim to be descendant of the Kshatriya or warrior class of the Vedic times. They claim that they were Suryavanshi, that is belonging to the sun family, or Chandravanshi, that is belonging to the moon family. Some Rajput clans also considered themselves to be the parts of the fire family, Agnikula. They believe that they were born out of a sacrificial fire. वर्ड राजपूत, राजपूत शब्द जो संस्कृत वर्ड राजपुत्र से आया, जिसका मतलब होता है राजा का बेटा। कुछ इतिहासकारों का अपना अपना विभिन्न मत है। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया में हुन इन्वेजन के बाद में इन्हीं लोगों का आधिपत्य हुआ। कुछ राजपूत का मानना है कि वो लोग वैदिक टाइम से योद्धा थे, अच्छे युद्ध करने वाले थे, क्षत्रिय समूह को बिलोंग करते थे। कुछ का मानना है कि वो सूर्यवंशी थे, जैसा कि सन फैमिली को बिलोंग करते थे। कुछ का मानना है चंद्रवंशी थे, मून फैमिली से बिलोंग करते थे। और कुछ का मानना है कि वो फायर फैमिली को बिलोंग करते थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग द राजपूत डायनेस्टी वर द गैधवल्स ऑफ कन्नौज, द परमारस ऑफ मालवा, द चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड एंड द चहमान्स ऑफ अजमेर। जो महत्वपूर्ण रूप से जो राजपूत डायनेस्टीज़ के राजा हुए वो थे कन्नौज के गैधवल्स और मालवा के परमारस और बुंदेलखंड के चंदेलास एंड द अजमेर के चहमान्स। पृथ्वीराज चौहान was the most famous ruler of the Chahman dynasty. A great general, he conquered several small states in Rajasthan and defeated the Chandel kings of Bundelkhand. पृथ्वीराज चौहान चहमान डायनेस्टी के सबसे प्रसिद्ध और योग्य शासक हुए। उन्होंने राजस्थान के सारे छोटे छोटे राज्यों पर अपना अधिकार किया और बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं को हराया। The events of Prithviraj reign have been described in Prithviraj Raso, composed by his court poet and friend चंद बरदाई। पृथ्वीराज के शासन की जो पूरा वर्णन है वो पृथ्वीराज रासो नामक प्रसिद्ध बुक में लिखा हुआ है, जो कि उनके दरबारी कवि और उनके मित्र चंद बरदाई ने लिखा है। पृथ्वीराज चौहान was engaged in the first and second battle of Tarain against Muhammad Ghori in 1191 and 1192 AD. respectively. In the first battle of Tarain, he defeated Ghori. However, in the second battle, he was defeated and executed. पृथ्वीराज चौहान उन्होंने फर्स्ट और सेकंड बैटल ऑफ तराइन का मोहम्मद गोरी के साथ में किया 1191 में और सेकंड बैटल 1192 में। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में उन्होंने गोरी को हरा दिया और सेकंड बैटल में वो उनसे हार गए, उनको एग्जीक्यूशन दे दिया गया। सो स्टूडेंट्स, please like, subscribe and press bell icon for the new upcoming videos or notifications. Thank you.